নমস্কার, আমি স্বপন ইভিএম নিউজে আপনাদের সকলকে স্বাগত। এই মুহূর্তে একটা ভিডিও দেখাবো, খুব ভয়ঙ্কর ভিডিও। উত্তরাখণ্ড আগামী দিনে ভারতের কাশ্মীর হতে চলেছে। এটা উত্তরাখণ্ডের স্ট্যাটিস্টিক্স বলছে, তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে এটা সেই ভিডিওতে আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে উত্তরাখণ্ডের ডেমোগ্রাফিকে চেঞ্জ করে দেওয়া হচ্ছে কৌশলে। ছদ্ম নামের আড়ালে সেখানে মানুষ পৌঁছে যাচ্ছে, এক শ্রেণীর মানুষ, তারা গিয়ে সেখানকার ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ করে দিচ্ছে এবং এরাই হচ্ছে মূল কারিগর। ভারতবর্ষের মধ্যে দেশবিরোধী শক্তি যারা দেশকে ক্ষতি করতে চায়, এই যে সমস্ত ইন্ডি গঠবন্ধনের জেতার পেছনে মূল চাবিকাঠি হচ্ছে এই শক্তিটা, যারা এখানে এরকম বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে গিয়ে তারা এরকম ডেমোগ্রাফিকে চেঞ্জ করছে এবং এদের একটা বিরাট অংশ হচ্ছে বাংলাদেশি। আপনারা ভিডিওটা মন দিয়ে দেখুন, চমকে যাবেন। ভয়ঙ্কর চেহারা উত্তরাখণ্ডে, আর পশ্চিমবাংলা তো আর বছর 10-15, তারপরে এটা কার্যত পশ্চিমবাংলা বাংলাদেশে পরিণত হয়ে যাবে। পশ্চিমবাংলার যে চেহারা আপাতত নিয়েছে, আর 12-13 বছর পর পশ্চিমবাংলাতে এটা সেকেন্ড বাংলাদেশ হবে। এখানে হিন্দুরা আর 10-12 বছর পর মাইনরিটি হয়ে যাবে। এরকম একটা চেহারা কিন্তু পশ্চিমবাংলাতেও তৈরি হয়ে গেছে, এই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। আপনি যেদিকেই তাকাবেন, যে জেলাতেই তাকিয়ে দেখুন, সেই জেলাতেই, উত্তরবঙ্গের কিছু জেলা বাদ দিলে বাকি আপনি যে জেলার দিকেই তাকাবেন, ইতিমধ্যেই তো 5-6টা জেলাতে ওরা মেজরিটি পেয়ে গেছে। মুর্শিদাবাদের তো ভাগীরথীর জলে ফেলে দেওয়ার হুমকি ইতিমধ্যে চলেই এসছে। আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন, পশ্চিমবাংলার ভাগ্যেও সেটা লেখা হচ্ছে। পশ্চিমবাংলার এই চেহারা এবং এদের জন্য কারা দায়ী আপনারা সকলেই জানেন। মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবাংলার মুসলমানদের জন্য জেতে, মুসলমান ভোটের জন্যই মমতা ব্যানার্জি জেতে। কারণ মমতা ব্যানার্জি যে 45% ভোট পায়, তার মধ্যে 30% মুসলমান ভোট, 8-9% ভোট হচ্ছে যেটা হিন্দুদের ভোট, বাকি ভোটটা লুট করে। ফলে এই রকম চেহারা পশ্চিমবাংলাতেও ধীরে ধীরে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবাংলাতে রোহিঙ্গা আর বাংলাদেশি ভর্তি হয়ে গিয়ে পশ্চিমবাংলার ডেমোগ্রাফি আগামী 10 বছরের মধ্যে পাল্টে যাবে। আপনি পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটা জেলার দিকে তাকান, সেই জেলাগুলোতে তাকালেই আপনি এই চেহারা দেখতে পাবেন। ফলে এটা যে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা, সেটা দেখার জন্য, সেটা বোঝার জন্য এই ভিডিওটা দেখা জরুরি। এবং শুধু ভিডিওটা আপনারা দেখবেন তাই নয়, এই নিউজটা আপনারা বেশি বেশি করে শেয়ার করুন। এবং তার পাশাপাশি পশ্চিমবাংলার জনগণেরও সচেতন হওয়াটা খুব জরুরি, কারণ আমরা চাই না আর একবার নতুন করে পশ্চিমবাংলা থেকে উদ্বাস্তু হতে। उत्तराखंड से मैं आता हूं। उत्तराखंड की स्थिति यह है कि उत्तराखंड का जीवन 5 साल, ये ज्यादा से ज्यादा 10 साल का है, वो कश्मीर बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए मैं आपको ये बताता हूं कि बद्रीनाथ में, केदारनाथ में मस्जिद बन गई है, इबादतगाह बन गई है, वहां पे नमाज अदा होनी शुरू हो गई है। जो वोटेज परसेंटेज चेंज हुआ है 2012 से लेकर 2022 तक, ये 43% जो है उधम सिंह नगर में, देहरादून में 41%, नैनीताल में 32%, हरिद्वार में 33%, हरिद्वार पूरा शहर घेर लिया गया है और टोटल परसेंटेज राइज 37% है। और ये 20% से लेके यहां तक इतनी परसेंटेज राइज हो गई है। और पूरे पहाड़ में, पूरे देहरादून में जितना भी फल और सब्जी का बिजनेस है, ये 90% बिजनेस हमारे शांति दूतों के पास है। 2012 में इसका एक सर्वे कराया गया था। देहरादून सिटी में 7001 ठेले वाले जो फल और सब्जी बेचते हैं, ये सारे शांति दूत थे और उसमें से अधिकांश जो है वो बांग्लादेश से आने वाले थे। उसकी पूरी लिस्ट तैयार करके इसको कहने में कोई शर्म नहीं है और कोई हिचक भी नहीं है। जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव जी ने ये सर्वे करवाया था और इस सर्वे करा के बीजेपी की गवर्नमेंट को दिया गया था कि मुझको पुलिस मुहैया करा दीजिए और मैं इन सबको डिटेंशन, जो कि स्टेट का सब्जेक्ट है, डिटेन कर दूंगा, डिटेक्शन में डाल दूंगा और इनको डिपोर्टेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। तो उस जुलाई 31 को शंभुनाथ श्रीवास्तव जी का कार्यकाल उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने समाप्त कर दिया। तो ये हमारी स्थिति है। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि हमारा उत्तराखंड का 630 किलोमीटर का बॉर्डर चाइना के साथ लगता है और एक बटालियन जो है वो 40 किलोमीटर के एरिया को पेट्रोल करती है। हमारे यहाँ वहां पे स्काउट्स एंड गाइड्स हैं। उन स्काउट्स एंड गाइड्स को अरुणाचल जो स्काउट्स हैं या जो सिक्किम स्काउट्स हैं, उसके तर्ज के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स की तरह उनको
वहां पे लगाया जाए, उनकी भर्ती जो है वहीं कुमाऊं और गढ़वाल से हो और वहीं वो पोस्ट रहे 6 से 7 साल तक। और उनके परिवार को, क्योंकि हमारे यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें फिशरीज में और पिगरीज में 80% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो अगर हम पिगरीज को वहां पे लगा देंगे तो हमारे शांतिदूत शायद उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो वहां से निकल जाएंगे और हमारा समाज जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वहां पे बन जाएगा। ये एक मेरा सुझाव है जो मैं कि धामी साहब को भी दे चुका हूं, सबको दे चुका हूं, और उससे हम उत्तराखंड का जीवन बढ़ा सकते हैं और जो होनी है उसको थोड़े दिन के लिए टाल सकते हैं, हमें टाइम मिल सकता है लड़ने के लिए। तो ये दयनीय स्थिति है पूरे, और सबसे मैक्सिमम देहरादून शहर के अंदर धर्मपुर में जो चेंज आया है 56% शांति दूतों की आबादी है। देहरादून सिटी भी सेफ नहीं है, कोई कॉलोनी सेफ नहीं है। देहरादून में क्या आप कर सकते हैं उसका सोल्यूशन, मंदिर को सेंटर बना के मित्र मंडली बनाइए, मंदिर में जाके इकट्ठे होइए, मंदिर में जाके सबके साथ बनिए, मंदिर का भी उत्थान कीजिए और आपसी में भाईचारा बढ़ाइए और एक दूसरे को पहचानिए। वो आपका एक जो मित्र मंडली है, अगर आपके घर में 4 लोग आते हैं तो आपने उस मित्र मंडली को बुलाया तो वो आपके साथ खड़े होंगे, अन्यथा आपके पास कोई आदमी नहीं है। आपने अगर हथियार भी ले लिए तो उसमें 6 गोली होंगी, कितने लोगों को मारेंगे उसके बाद आप मरेंगे अवश्य, ये